welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And आज का जो session है वो है session number 6. So in this session we will discuss about फरवरी का revolution हुआ पेट्रोग्रेड में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. So in the winter of 1917 conditions in the capital Petrograd were grim. तो जब 1917 का जो विंटर का टाइम था उस समय जो कैपिटल सिटी है पेट्रोग्रेड, वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब कंडीशंस थी. एंड जो लेआउट था वहाँ सिटी का, द लेआउट ऑफ द सिटी seemed to emphasize the divisions among its people. तो लोगों को जो सिटी का एक लेआउट था उससे ही पता चलता था कि how the city is divided, the people of the city are divided, and this can be seen through the layout of the city, जो पेट्रोग्रेड की सिटी थी. Now, how was the layout? The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. So, जो ये layout से ही दिखता था कि how people are divided. तो the way they were divided कि जो workers quarters थे and also जो factories थी वो कहाँ located थे? वो located थे river Neva के right bank पे, and on the left bank वहाँ पे जो fashionable areas थे, winter palaces and also official जो buildings थी, including the palace where the Duma met. तो वो सारी जो चीज़ें थी that was on the left bank. So this is how the division was कि right bank पे जो worker quarters थे and industries थी, factories थी, और लेफ्ट बैंक पे जो बड़े जो फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था, एंड ऑल्सो ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो का सारी थी, एंड बाकी सारी जो बेटर और अच्छी चीज़ें थी वो जो था वो लेफ्ट बैंक पे था. On February जो 22nd था, लॉकआउट took place at a factory on the right bank. तो जो राइट बैंक पे फैक्ट्री थी वहाँ पे फरवरी 22nd में एक लॉकआउट हुआ, जो वहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे राइट बैंक पे जो फैक्ट्रीज थी उनमें से एक में ऐसा हुआ. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन दैट फरवरी मंथ. नाउ द नेक्स्ट डे जब वहाँ पे लॉकडाउन हुआ, उसके जो नेक्स्ट डे था, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी. सो everybody came together, all the factory workers came together, और उन्होंने ये जो एक लॉकडाउन हुआ, जो लॉकआउट हुआ वहाँ पे फैक्ट्री में, उससे इन्होंने सिंपैथी दिखाने के लिए दैट्स हाउ वर्कर्स जो थे 50 फैक्ट्रीज के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी. एंड एवरीबडी केम टुगेदर फॉर द जस्टिस. दे थॉट जो हुआ लॉकआउट दैट वाज नॉट जो एक जस्टिफाइड लॉकआउट था वो हुआ. सो देन अगेन आफ्टर दैट ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा. सो 25 फरवरी को जो गवर्नमेंट है उसने फिर जो डूमा था उसको सस्पेंड कर दिया. एंड पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. तो ये जो मेजर लिया गया उसके अगेंस्ट में देन पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने दे स्पोक आउट अगेंस्ट इट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट हैपन इन दैट फरवरी. सो डेमोन्स्ट्रेटर्स देन all these things are happening. Then there were demonstration जो थे वो भी हो रहे थे. So demonstrators returned in force to the street of the left bank on the 26th. So after that 25th को जो गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड करने का मेजर किया, एंड आफ्टर दैट 26 को डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वो वापस आए, बहुत सारे लोग मिलके देन दे केम टुगेदर. जो लेफ्ट बैंक के स्ट्रीट थे वहाँ पे दे केम एंड दे स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग. On the 27th, the police headquarters were ransacked. So these all things were happening one after the other at that time. तो फिर 27th को जो पुलिस headquarters था उसको ransack कर दिया गया. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. तो now they started asking for all these things कि जो all the people they came on the streets, and then they started asking for bread, wages, जो better wages होने चाहिए, better hours and also democracy, because people were already वो बहुत ज़्यादा परेशान थे from all these things, and all of a sudden all these things were happening. So they started all these जो एक slogans बोलना शुरू करा, and they started revolting up
जो इन सब चीज़ों के खिलाफ था। The very next day a delegation went to see the Tsar. तो because of all these things happening, जो next day ही there was a delegation जो गया सार से मिलने, because of all these things, there were a lot of things happening at that time. तो military जो commanders थे उन्होंने then they advised him to abdicate. तो उसकी जो राजगद्दी है उसे they said to abdicate from that, and he also followed their जो advice उन्होंने दी, तो उन्होंने वो एडवाइस को फॉलो भी किया, एंड देन उन्होंने फाइनली 2 मार्च को एब्डिकेट कर दिया. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर चेंजिंग एट दैट टाइम. इन फरवरी मार्च के महीने में देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड एट दैट टाइम. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Now because of the abdication, then they needed somebody to run the country. So सोवियत लीडर्स जो थे एंड डूमा लीडर्स उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जिससे कि वो गवर्नमेंट को रन कर सकें. रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. तो जो रशिया का जो फ्यूचर है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड वो उसका इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ जो यूनिवर्सल adult suffrage है, and everybody should vote for all these, everybody should vote and everybody should have the say in that, whosoever they want the person to rule, and what kind of government they want. Petrograd had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, दैट वाज द सिटी ऑफ पेट्रोग्रेड. हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में भी डिस्कस की हाउ थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम पेट्रोग्रेड, से वहाँ से स्टार्ट हुई. तो पेट्रोग्रेड ने जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है वहाँ से वो शुरू हुआ, एंड जिसकी वजह से जो मोनार्की थी और वो ख़त्म हुई, एंड द मोनार्की वाज ब्रॉट डाउन इन February 1917. सो ऑल दीज थिंग्स दैट हैपन एंड दैट हैज़ लेड टू जो मोनार्की है उसका ब्रॉट डाउन जो हुआ, मोनार्की जो ख़त्म हुई, वो इन सारी चीज़ों से हुई. नाउ आफ्टर मोनार्की का ब्रॉट डाउन हुआ उसके बाद देन थिंग्स अगेन चेंज, एंड आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट. सो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी उसमें देन प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी, बिकॉज दे हैड टू हैव समबडी टू रन द कंट्री. सो उसमें आर्मी ऑफिशियल जो थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सारे लोग बहुत इन्होंने इन्फ्लुएंशियल, देयर वाज अ रोल ऑफ देम, दे वर डूइंग ऑल दोज थिंग्स. But the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. But जो इन सब लोगों के बीच में they were liberals और socialists जो लोग थे, they were working towards an elected government. So they wanted an elected government because they always wanted to end the monarchy, and that happened, and that's why now they wanted the elected government to come and take over. In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. So he was in exile. So then he came back to Russia in April 1917, and his name was Vladimir Lenin, and he came back from the exile. And after that, he declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and bank be nationalized. These 3 demands were Lenin's April thesis. तो जब वो एक्साइल से वापस आए देन उनका जो एक लेनिन्स का अप्रैल थीसिस है उसमें उन्होंने 3 जो चीज़ें थी वो रखी. उन्होंने ये डिक्लेयर किया पहले तो कि वॉर जो है उसको बंद होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. जो पीजेंट्स हैं उनके लिए, उनको ये सारी लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, एंड ऑल्सो जो बैंक है उनको नेशनलाइज कर देना चाहिए. तो दीज आर ऑल 3 थिंग्स. जो 3 डिमांड थी उनकी, उसको उन्होंने जो बोला गया वो था लेनिन्स अप्रैल थीसिस. Now in October 1917, on 16th October, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. तो नाउ लेनिन जो थे उन्होंने परसुएट करा कि पेट्रोग्रेड जो सोवियत एंड जो बोल्शेविक पार्टी है
वो एग्री हों और एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करें. So that's how things started changing from October. The uprising began on 24th October. तो then things started changing and uprising जो है वो शुरू हुआ 24th October को. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. So he sensed that there is going to be a trouble. So that's why जो Prime Minister Kerensky थे at that time वो उन्होंने सिटी को वो छोड़ के चले गए and then he summoned the troops to take over and then at dawn military men loyal to the government seized the building of 2 Bolshevik newspapers. तो Bolshevik के जो 2 newspaper थे उसको then जो military men थे जो गवर्नमेंट के लॉयल थे उन्होंने Bolshevik के जो 2 newspaper थे उनकी जो बिल्डिंग थी उसको सीज कर लिया. At a meeting of the All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. तो now जो एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस की जो पेट्रोग्रेड में हुई वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे अप्रूव जो बोल्शेविक का एक्शन था, दे अप्रूव्ड ऑफ दैट एक्शन. सो अ लॉट ऑफ पीपल वर विद हिम. जो बोल्शेविक का एक्शन था दे वर विद हिम फॉर दैट एक्शन. Uprisings took place in other cities also, so it wasn't only Petrograd कि केवल Petrograd की cities में वहाँ पे जो uprising है वो हुआ. Now it was going to जो other cities हैं वहाँ पे भी uprising took place. There was heavy fighting especially in Moscow, but by December the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. So now जो ये fight था it gone to other cities also and there was heavy fighting. स्पेशली जो मॉस्को की सिटी थी वहाँ पे बहुत सारा ये जो फाइट है वहाँ पे बहुत हुआ. बट जो बाय दिसंबर था बिकॉज ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग फ्रॉम फरवरी, ये सारा जो चेंज था, इतना फाइट एंड ऑल दैट वो हैपनिंग, ऑल दिस चेंजेस आर हैपनिंग. बट जो बाय दिसंबर जो था, जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जो मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया में ऑल दिस थिंग्स जो जो चीज़ें हो रही थी, जो फाइट हो रही थी, so they finally controlled all these things by December. So in this session we have discussed about जो February के month में इतना ज़्यादा वहाँ पे changes were happening and how things changed in the Petrograd area. It started from Petrograd and then when the December came, so it was controlled Moscow and Petrograd दोनों में. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.